The ACL, or anterior cruciate ligament, is one of two ligaments inside the knee joint. Together, the ACL and PCL, or posterior cruciate ligament, stabilize the knee. The ACL travels from the back to the front of the knee joint and is connected to the femur and the tibia. The ACL plays an important role when you perform activities in sports that require changing direction. When the leg and body change direction, the ACL holds the femur and tibia together. If the knee receives too much stress, the ACL could be sprained or completely torn. Without the ACL, the tibia can now move forward freely, making the knee less stable. To confirm the degree of your ACL injury, perform a physical exam and use imaging like X-ray and MRI. If surgery is required, your surgeon will gain access to your knee joint by using sharp instruments called trocars to make 2 or 3 small openings or ports. He or she will inject a sterile solution into the joint to push the surfaces apart, allowing the structures inside the joint to be viewed more easily. Next, your surgeon will insert the arthroscope and other instruments through the First, the surgeon places the drill guide on the femur and locks it in place. The drill guide is placed against the bone. The drill begins drilling through the femur from outside of the joint to the inside of the joint. After removing the guide, the drill sleeve is tapped into the femur. Then the blade at the end of the drill pieces are opened into the cutting position and drilled into the bone, creating a hollow space in the bone. The drill is stopped when it meets the tip of the drill sleeve and is removed. A suture is passed through the drill sleeve and through the previously created space. The drilling and suture passage steps are then repeated in the tibia. These sutures are used to pass the pre-sutured graft that will ultimately replace the ligament. The suture with the button in the femur helps pull the graft through the femur. Additional sutures are placed on the graft, and then the sutures from the tibia pull the graft into the tunnel in the tibia. A button is added to the sutures on the tibia and then tightened. The button on the femur is also tightened. The remaining tibia sutures are tied to the bottom and the tails are cut, completing the repair. इस सर्जरी में हम आपका लिगामेंट आपके ही हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बनाते हैं। हम हैमस्ट्रिंग का एक टेंडन निकालते हैं और उसको हम लिगामेंट के रूप में आपके घुटने में बना देते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। इस टेक्निक के 3-4 बेनिफिट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एसीएल सर्जरी जब हम करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर इसको नए लिगामेंट को स्क्रू से फिक्स करते हैं। अब स्क्रू वाली फिक्सेशन और ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेसिंग में क्या फ़र्क है? जब हम स्क्रू से फिक्स करते हैं आपके लिगामेंट को तो इसमें पैर बैंड करने में 1 से 1.5 महीना लगता है। इसमें काफ़ी दर्द भी होता है पैर बैंड करने में, क्योंकि इतने लंबे समय बाद हम बैंड कर रहे हैं। दूसरा, खिलाड़ी जॉगिंग 3 महीने बाद कर पाता है और बैक टू स्पोर्ट्स और रनिंग में जाने में उसको कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। जब यही चीज़ हम ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से करते हैं तो खिलाड़ी अगले ही दिन अपना नी 90 डिग्री तक बैंड कर पाता है। उसको बहुत ही कम पेन महसूस होता है। वो आराम से बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के चल सकता है नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। जॉगिंग हम 1 महीने में रिज्यूम कर देते हैं। खिलाड़ी एक्सरसाइजेज जैसे लंजेस और स्क्वाट्स 15 से लेके 20 दिन के अंदर चालू कर देता है और बैक टू स्पोर्ट्स एंड रनिंग खिलाड़ी 3 महीने में कर लेता है। इस सर्जरी में इतना फास्ट रिहेबिलिटेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि
जब हम ऑल इनसाइड तरीके से ACL का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो दोनों ही हड्डियों में बहुत ही छोटे छेद होते हैं और हम आपका इसमें एक ही टेंडन का उपयोग करके आपका लिगामेंट बना देते हैं। साथ में इसको जब फाइबर टेप से हम इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं तो हम खिलाड़ी को जल्द से जल्द एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं और वापस खिलाड़ी 3 महीने के अंदर इस स्पोर्ट्स में चला जाता है। जब मैंने भागना शुरू किया तो मैंने उनको एक वीडियो भेजा, उसमें हल्का सा लिम्प था, बट उन्होंने बोला कि नहीं भागते रहो, वो लिम्प तुम्हारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था नी में, बट थोड़ा सा डर की वजह से आई थिंक मैं लिम्प कर रही थी। तो आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस से 4-5 डेज़ के बाद मेरा लिम्प भी जा चुका था एंड मैं काफ़ी तेज़ मैं काफ़ी प्रोग्रेस भी तेज़ दिख रही थी, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था और मैं ज़्यादा जल्दी भागने लग गई। फिर आई थिंक आफ्टर 15-20 डेज़ के बाद मैंने 10 किलोमीटर्स में भी पार्टिसिपेट किया जो हाफ मैराथन्स थे एंड मैंने अपना रेस कंप्लीट कर लिया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दैट आई एम बैक ऑन ट्रैक। 3 मंथ्स के बाद जब मैंने भागना शुरू किया, अब मुझे 1 ईयर हो गया है भागते भागते एंड काफ़ी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हुए मोटरसाइकिल भी राइड करने लग गई हूँ मैं। नी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी 100% आ गई है और मैंने अभी 5 रन्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है, 15 किलोमीटर्स टू 21 किलोमीटर्स। मेरा नेक्स्ट मंथ एक और 21 किलोमीटर है जिसमें मैं अपना टाइम बीट करने वाली हूँ। मैंने 21 किलोमीटर्स 2 hours 6 minutes में किया है। आई एम एमिंग कि मैं उससे डेफिनेटली कम में करूँगी। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ ऑफ हाउ आई कैन सी माई प्रोग्रेस।